फिफ्थ क्लास, दिस इज़ योर मोरल बुक. ओके, फर्स्ट लेसन कल हमारा हो गया था. टुडे वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर 2, अ कॉमन मैन. अ कॉमन मैन मीन्स होता है एक आम आदमी, एक आम इंसान. ठीक है, अ कॉमन मैन. Once there lived a man named Raj. He was a middle-aged man. He was born in a poor family but raised well by his father and mother. His father owned a welding shop and used to work for more than 12 hours a day to lead a decent living. Still, Raj's fathers could not earn enough money to provide a luxurious living to his family. Raj was an average student in his school and used to score around 60% marks. Raj's dreams was to become a doctor. Since his marks were not very high, he could not get the desired course he wanted to study. He joined a bachelor degree course, completed the course successfully and got a job in a company. Okay, एक समय मतलब एक Once there lived a man. एक मैन रहता था जिसका नाम था राज. एक आदमी था जिसका नाम था राज. वो एक बहुत ही बिल्कुल मध्यम वर्गीय इंसान था. मध्यम वर्गीय जैसे हम लोग आम इंसान है ना, बिल्कुल वैसा था. वो बहुत ही गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था, पर उसके परिवार वालों ने उसकी भरण पोषण में कोई भी कमी नहीं रखी थी. जैसे हमारे फैमिली भी मेम्बर्स जो है वो भी कोशिश करते हैं, भले ही वो चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, पर कोशिश करते हैं कि हमारा लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है वो कर सकें. उसी तरह उसके फादर जो मदर थे वो भी इसी तरह से उसको हर एक चीज़ देने की कोशिश करते थे. उनके फादर जो थे उनकी एक वेल्डिंग की शॉप थी जहाँ पर वो 12 घंटे काम करते थे दिन में. और उसके जो फादर थे वो इतना पैसा नहीं कमा पाते थे जिससे वो बहुत लग्जूरियस लाइफ मीन्स जहाँ पे बड़ा घर होता है, गाड़ियाँ होती हैं, इस तरह का जीवन जो है इतना नहीं कमाते थे कि वो इस तरह का जीवन अपने परिवार को दे सके. राज जो था वो एक एवरेज स्टूडेंट था. बिल्कुल उसके मार्क्स जो थे वो 60% आते थे. उसका ड्रीम था कि वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बने, पर उसके मार्क्स जो थे इतने हाई नहीं होते थे. ओके, ही कुड नॉट गेट द डिज़ायर्ड कोर्स ही वांटेड टू स्टडी. इसलिए वो ज़्यादा स्टडी में ज़्यादा अच्छा नहीं था. ही जॉइंड अ बैचलर डिग्री कोर्स. उसने एक बैचलर डिग्री कोर्स ज्वाइन किया. कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुल एंड गॉट अ जॉब इन कंपनी. जैसे ही उसने वो जॉब उसको मिल गया तो वहाँ पर उसने अपनी कंपनी में उसकी जॉब लग गई. नेक्स्ट पेज नंबर 10. His life was going on with no dramatic change. His father was still working in his welding shop and earned for his living after getting a permanent job. Raj's parents wanted him to marry. He got married to a lady from his native town and he also got promoted in his job. After a few years, he had beautiful twin boys. Later, Raj began to earn a handsome salary and started to live a luxurious life. He bought a new house and a new car. Some of our luxurious were really unnecessary. His company provided him a car. Still, Raj purchased a new car. After almost 6-7 years with Raj's luxurious lifestyle, he could not manage all the household expenses and could not afford to pay for the children educations and other necessities of life. His father fell sick and could not continue his work in the welding shop. He requested Raj to give some money for his treatment and also for the household expenses. Raj, who was already suffering from financial crisis, shouted at his parents and told that he had no money to help them. Raj complained to his parents, "You never sent me to a big school. I was not provided with expensive clothes. You fed me my favorite foods very rarely. Also, I was not able to taste a few varieties of food. When I got low marks, you did not have enough money to improve my academics and took more than 10 years for me to get settled. Now I am again struggling for money." ओके, जैसे उसकी कंपनी में जॉब लग गई, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए. उसके फादर जो थे वो जैसे पहले भी काम करते थे वेल्डिंग शॉप पे, उसके की जॉब लगने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसी तरह काम करते रहे. जब उसकी जॉब परमानेंट हो गई, राज के पेरेंट्स ने चाहा कि उसकी अब शादी कर दी जाए. उसी के शहर की लड़की से उसकी शादी हो गई. देन उसको प्रमोशन मिल गया, उसके जॉब में उसको प्रमोशन मिल गया. कुछ सालों बाद जो है उसके घर में ट्विन बॉयज़ 2 जुड़वा बच्चे हुए. उसके बाद राज जो है ना उसने उसकी सैलरी जो थी बहुत अच्छी हो गई. फिर उसने लग्जीरियस लाइफ मतलब उसने आराम की चीज़ें उसकी लाइफ में आ गई. उसने नया घर खरीद लिया, नई कार ले ली
उसकी लाइफ जो थी बहुत बिल्कुल बड़े आदमियों की तरह रहने लगा था। उसको कंपनी से एक कार मिली थी, बट उसके बावजूद उसने एक और कार ली थी। जब 6-7 साल गुजर गए, 6-7 साल गुजर जाने के बाद भी जो अब उसको ना, अब इतनी सारी चीज़ें जब हम लेते हैं हमारी लाइफ में जब आती है, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करने के लिए भी पैसा खर्च होता है, कार की सर्विसिंग हुई, ये सब चीज़ों में भी पैसा खर्च होता है। अब ये सब मैनेज करने में उसके खर्चे जो थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब वो उन खर्चों को उठा पाने में सक्षम नहीं था। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उसके पास अब पैसे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और अच्छे उसके बच्चे जो थे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते थे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। जब उसके फादर बीमार हो गए, उन्होंने भी काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके उन्होंने बोला कि अब आप काम करना बंद कर दो। राज ने अपने फादर से बोला अब आप जो है रेस्ट करो। ही रिक्वेस्टेड राज टू गिव सम मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट। पर जब उन्होंने राज से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे दे दो, तो राज ने क्या बोला, मैं खुद अपने इतने सारे खर्चों से गुजर रहा हूँ, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं आपको आपकी हेल्प के लिए पैसे दे पाऊँ। और राज जो है उनसे शिकायत करने लगा कि आपने कभी भी मुझे अच्छे स्कूल में नहीं भेजा, आपने मुझे महंगे कपड़े नहीं पहनाए, आपने मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं खिलाया, और आप मेरे जब मार्क्स कम आते थे तो आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप मेरी जो पढ़ाई है उस पर ज़्यादा खर्चा कर पाते, मुझे अच्छी कोचिंग क्लासेस या फिर अच्छे स्कूल में भेज पाते। और आप ही की वजह से आज भी मैं जो हूँ अपने जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ। ये सारी कंप्लेन वो किससे कर रहा है, अपने फादर से कर रहा है। यू डिड नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प मी एंड यू आर अ बर्डन टू मी, डू नॉट कम टू मी अगेन। हिज पेरेंट्स लेफ्ट शैटर्ड। उसने अपने पेरेंट्स से बोला कि आप लोगों ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया है, आप लोग मेरे लिए बोझ हो, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। उसके पेरेंट्स बेचारे वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। आफ्टर अ वीक वाइल राज वॉज एन ऑफिशियल टूर, ही मेट ए स्मॉल बॉय नेम्ड अर्जुन। कुछ हफ्ते बाद जो है राज अपने ऑफिस के काम से एक टूर पर जाता है, जहाँ पर एक वो छोटे से बच्चे से मिलता है जिसका नाम है अर्जुन। ही वॉज सेलिंग टॉयज़। वो क्या करता है, टॉयज़ बेचता है। अर्जुन रिक्वेस्टेड राज टू बाय समथिंग। अर्जुन जो है रिक्वेस्ट करता है राज से कि वो कुछ खरीद ले। राज आस्क्ड अर्जुन व्हाई ही वॉज सेलिंग टॉयज़ इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। अर्जुन रिप्लाइड, माई फादर मैट विथ एन एक्सीडेंट अ ईयर अगो एंड ही लॉस्ट वन हैंड, ही कैन नॉट वर्क नाउ। उसने बोला, अर्जुन ने बताया कि मेरे जो फादर थे उनका एक्सीडेंट हो गया था 1 साल पहले, जिसकी वजह से उनका एक हाथ जो है वो खो गया, एक हाथ जो है वो अपना गंवा चुके हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकते हैं। माई मॉम इज़ वर्किंग एज अ मैड एट अ फ्यू हाउसेज। आई एम हेल्पिंग माई पेरेंट्स बाय सेलिंग टॉयज़। आई गो टू स्कूल एंड सेल टॉयज़ ओनली इन द इवनिंग। आई वर्क फॉर 3 hours a day and I will study at night. Raj purchased a few toys from Arjun and he learned a lesson from the life of Arjun. At a very small age, Arjun was helping his parents, but Raj, who was just unable to meet the expensive lifestyle, neglected his parents. उस छोटे से बच्चे से राज ने क्या सीखा, राज ने ये सीखा, उसने बोला कि मेरी माँ जो है वो नौकरानी का काम करती हैं कुछ घरों में जाके, और मैं अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए क्या करता हूँ, खिलौने बेचता हूँ ताकि मैं उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकूँ। मैं दिन में 3 घंटे काम करता हूँ और रात में अपनी पढ़ाई करता हूँ। राज ने उनसे कुछ खिलौने खरीदे और राज ने उनसे जीवन का एक बहुत बड़ा, अर्जुन से जो है उसने क्या सीखा, सबक सीखा। इतनी छोटी उम्र में उस बच्चे में ये था कि मैं अपने पेरेंट्स की क्या कर सकूं, हेल्प कर सकूं, उन पर बोझ ना बन के उनकी मदद कर सकूं, उनको और ज़्यादा कठिनाई में ना डाल के उनकी हेल्प कर सकूं। पर राज ने क्या किया, राज ने उनसे शिकायतें की, उनसे शिकायतें की, आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर कभी उनने उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की, हमेशा उनको अनदेखा किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन से हमने क्या सीखा, ये हमारी ड्यूटी है, इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। ये हमारा कर्तव्य है। जिस तरह से जब हम छोटे होते हैं तो पेरेंट्स का कर्तव्य होता है हमें बड़ा करना, हमारा पालन पोषण करना, हमें अच्छी शिक्षा देना। उसी तरह से जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है, तब ये हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य होता है कि हम हमारे पेरेंट्स की क्या करें, देखभाल करें। और ये मौका बहुत ही कम किस्मत वालों को मिलता है। इसकी एक्सरसाइज जो है मैं आज आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।